students, welcome back. Today I would like to share on the topic of parts of speech. So, what is parts of speech? First, let us know about. All the words can be divided into 8 classes called parts of speech. Parts of speech का मतलब ये होता है जो words, that means 8 words, there are particularly 8 words are there in a parts of speech, and these words are classified into groups. इसको एक sorry, not in groups, but it is classified separately, or you can say distinctly. That classified words are 8. There are 8 classified words, and that 8 classified words are altogether called parts of speech. अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग वर्ड्स में बांटे गए हैं, एंड दैट आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट वी हैव नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस. दीज आर द 8 वर्ड्स. ये है 8 शब्द जो कि इन्हें बांटे गए हैं, और इसी बांटे हुए शब्द को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इसलिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंस है बिकॉज इन ए सेंटेंस दीज पर्टिकुलर वर्ड्स विच आर क्लासिफाइड, विशेष रूप से ये 8 शब्द जो बांटे गए हैं, ये सेंटेंस में इसका यूज होता है. और बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स दैट in one particular words that we say parts of speech, and that parts of speech is helped us in a sentences to identify what type of words that are used in a sentence, and also in order to understand the English language, और इंग्लिश भाषा को समझने के लिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना जरूरी है. और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये अलग अलग शब्द जो बांटे गए हैं, जिसे 8 क्लासेस बोलते हैं, तो इनके मदद से हम लोग इंग्लिश भाषा को समझ सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव वन बाय वन, लेट अस डिस्कस on this topic one by one. So at first we have noun. Noun is the name of a person, animals, place or thing. In earlier classes that you have learned already about the noun. So directly I am coming to the point. मैं सीधा point में आ रहा हूँ. For an example, Ravi brought the cat home in her car. Here in the sentence, Ravi, who is Ravi? Who is, whether is a person or a what? Ravi is a person. So Ravi is a noun. Ravi is a person. And brought the cat. Which animals brought? कौन से जानवर लाए? That is cat. The cat. And cat is a animal's noun. What is the name of the place? कहां पर इसको लेके आए? Brought the cat home. कहां पर लेके आए? घर पर लेके आए. ये हो गया place. Place noun, animals noun, and this one is person noun. In her car. अब इसको कैट को कैसे लेके आया? बाय कार, यानी कि कार के द्वारा. यानी कि वो व्हाट इज द थिंग इज दैट, वो चीज क्या है? कार है. कार के जरिए लेके आया. तो दैट्स व्हाई इट इज अ थिंग्स नाउ. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेस एंड थिंग्स नाउ. लेट्स हैव अ लुक टू द नेक्स्ट एग्जांपल. द ब्रह्मपुत्र इज डीप एंड वास्ट रिवर ऑफ इंडिया. River's name is what?
Brahmaputra, and Brahmaputra is the thing's name. Brahmaputra is a thing's name. It's not a place, it's a things. Is deep and vast. वो कैसा है? डीप और वास्ट. क्या चीज है? ब्रह्मपुत्र इज, व्हाट इज ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र इज अ रिवर, एंड रिवर इज अ कॉमन नाउन, और that is it also comes in a things now. Okay, and Brahmaputra is located where Brahmaputra is located, this Brahmaputra river, it is in India. India is a country name, that's why it is called place name, इसीलिए इसको place name बोला जाता है. So these are the example of noun. Now move to the next topic, that is adjective. What is adjective? That qualifies a noun or a pronoun, that is which adds something to the meaning of a noun or pronoun. Noun या pronoun के जो वर्ड जुड़ जाते हैं और उस नाउन और प्रोनाउन को स्पेशल बना देते हैं, दैट मेक्स ए समथिंग मोर मीनिंगफुल. यानी कि नाउन और प्रोनाउन के और भी वो मीनिंगफुल बनाने को, शब्द को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं. जस्ट लुक टू द एग्जाम्पल. शी लाइक्स स्वीट मैंगोस. अब हेयर, अब किस तरह से हम लोग पता कर सकते, हाउ डू वी आइडेंटिफाई वेदर इट इज एडजेक्टिव और नॉट? तो सबसे पहले यू हैव टू कीप इट इन माइंड, हमेशा नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है. सो पर्टिकुलरली बेसिकली इन अ सेंटेंस, अगर एडजेक्टिव आपको पता करना है, इन ऑर्डर टू locate the adjective or to identify the adjective, you must have to remember that basically in a sentence noun से पहले adjective word होता है. So noun is followed by the adjective words. So here she likes sweet apples. Apples is a noun, and apple, and sweet is a adjective. Like I said, adjective, like I said, जैसे कि मैंने कहा कि noun के पीछे क्या होता है? adjective word. An adjective word is followed by the noun. Noun is followed by the adjective word. तो noun क्या हो रहा है? adjective word के द्वारा follow किया जा रहा है. तो that's why it is a noun, and it is, and the noun is followed by adjective. तो इसीलिए this sweet is a adjective. What kind of apple it is? तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. It helps you if you ask the questions like this, what kind of or how many. अब here the question is made in this way, what kind of apples? किस प्रकार का एप्पल है? It is sweet apple. किस तरह, कैसा है? स्वीट एप्पल. एंड स्वीट इज द टेलिंग समथिंग स्पेशल अबाउट द एप्पल्स. उसका स्पेशलिटी के बारे में बता रहा है, क्वालिटी के बारे में बता रहा है. सो क्वालिटी के बारे में बताने को ही हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं. दैट्स व्हाई स्वीट इज द एडजेक्टिव वर्ड ऑफ एप्पल्स, एंड दैट्स व्हाई व्हाट काइंड ऑफ एप्पल इट इज ए स्वीट एप्पल्स. जस्ट हैव अ लुक टू द नेक्स्ट एग्जांपल. द काइंड farmers fed the two birds. Farmers is a common noun. So like I said, noun is followed by adjective words. So kind is an adjective words. What type of farmer it is? He is. वो किस प्रकार का किसान है? वो दयालु किसान है. The दयालु is the quality of farmer. That's why it is an adjective words. About the birds, see how many birds are there. वो क्या चीज फार्मर क्या करता है? वो चिड़िया को खिलाता है. चिड़िया को खिलाता है. कितने चिड़िया को खिलाता है? 2 birds. How many birds are there? And 2 is a adjective word because it is telling about the number of birds. यानी कि कितने संख्या में वो birds, चिड़िया. तो 2 चिड़िया है. तो birds is a what? Noun. So noun is followed by adjective words.
So in this way we can identify adjective, and in this way we can identify which is noun and which is and what type of noun it is: person noun, animals noun, place noun, or a things noun. Now we have pronoun. Let us talk about pronoun. Pronoun that comes in place of a noun, यानी कि नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. Let just have a look some examples. I gave the news myself. News, that means I. यहाँ पे किसी व्यक्ति के बदले में, किसी व्यक्ति के नाम के बदले में आया है. That's why I is a pronoun. Pronoun, and here myself is also a pronoun. So that's why I gave the news myself. That's why we can say that it is a pronoun that comes in a place of a person's name or a thing's names. That is called a pronoun. तो यहाँ पर I is a name, is a person's where name is not mentioned. यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन I मेंशन किया है. I का मतलब मैं. I gave the news myself. मैंने खुद से अपने आप से न्यूज दिया, समाचार दिया. Second one, he has done his homework himself. He is also a pronoun. Has done his homework himself. Himself, खुद से. And खुद से कौन है? He है. That's why it is also a pronoun. Now move to the next topic, verb. What is verb? A word or a group of words that says something about a subject. It expresses an action or a state of being about the subject. Verb. Sentence में verb जो है, it is the playing the main role. ये सबसे मुख्य क्रूशियल रोल अदा करता है वर्ब. विदाउट वर्ब सेंटेंस नेवर गेट कंप्लीट, कभी कंप्लीट नहीं होता है. सो वर्ब इज अ हार्ट ऑफ द सेंटेंस. दैट्स व्हाई वर्ब इज कॉल्ड अ हार्ट ऑफ सेंटेंस. तो नाउ वर्ब क्या है? वर्ब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोला जाता है दैट सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, उसके बारे में कुछ बताया जाता है. और वो क्या है? इट एक्सप्रेस एन एक्शन. एक तो वो जो भी वाट एवर द एक्शन हैज बीन डन, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, उसके बारे में भी सम ऑफ द वर्ड्स टेल्स अबाउट दैट. नॉट ओनली दैट मच, उतना ही नहीं, लेकिन और भी कुछ बताता है अबाउट द एक्शन. एक्शन के विषय में, स्टेट के विषय में, सब्जेक्ट किस अवस्था में है और सब्जेक्ट किस उसमें है, यानी कि बोलने का मतलब. अब यू कैन सी द इन हियर सम वर्ड्स आई रोट इनसाइड द सर्कल. व्हाट अ पर्सन और थिंग डज हैव, यानी कि व्हाट अ पर्सन यानी किस प्रकार का व्यक्ति है या चीज है, चीजें हैं. और एंड ऑल्सो व्हाट अ पर्सन डज या व्हाट अ थिंग्स डज, यानी कि वो चीज क्या कर सकता है या वो व्यक्ति क्या करता है ना. एंड मोर अबाउट दैट, व्हाट अ पर्सन हैज और व्हाट अ थिंग हैज, यानी कि these things are telling about the word. So here an example, the children are playing. अब यहाँ पे कुछ some actions is going on, यहाँ पे कुछ एक्शन चल रहा है. क्या एक्शन चल रहा है? आर प्लेइंग, यानी कि वर्तमान में कुछ चीज चल रहा है. आर इज ऑल्सो अ वर्ब एंड प्लेइंग इज अ मेन वर्ब. दैट्स व्हाई दीज आर वर्ब. तो ये क्या चीज हो रहा है? डूइंग हो रहा है. सम एक्शन इज गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई इट इज डूइंग, कम्स अंडर द डूइंग. और यू कैन से एन एक्शन भी बोल सकते हो आप. ही हैज ए कार. अब यहां पे क्या? ही हैज ए कार. हैज समथिंग पोजेसेशन, यानी कि पोजेसिंग.
कुछ चीज अधिकार का जताना। तो यहां पर क्या चीज, पोजेसिंग, यहां पे पोजेसिंग के बारे में बताया जाता है। तो दैट्स वाई इट इज हैज इज अ पोजेसिंग वर्ड। क्या चीज है उसके पास, कार है, तो उसका खुद का कार है, तो दैट्स वाई पोजेसिंग। तो पोजेसिंग बताया जा रहा है, तो दैट्स वाई इट इज अ वर्ड। नाउ adverbs. Let us talk about the adverbs. What does it means? That modifies. Such words that modifies or adds to the meaning of a word, an adjective or an another adverb. So यहाँ पे क्या है बोलने से, adverb उन शब्द को बोला जाता है जो modify करता है, उसको बनाता है, उन शब्दों को बनाता है। किन शब्दों के साथ, वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ, तो और अनदर एडवर्ब, और दूसरे एडवर्ब के साथ मिलकर वो शब्दों को मॉडिफाई करता है, उसको फिर दोबारा संरचना करता है, तो उसी को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। यू कैन सी हियर सम ऑफ द एग्जांपल। शी स्पोक जेंटली। सो एडवर्ब कैसे पता करना है, तो व्हेनेवर यू, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एडवर्ब ना, यू जस्ट आस्क द क्वेश्चंस इन सच ए वे, किस तरह से आप पूछेंगे, हाउ करके, हाउ करके हम लोग को पूछना है, ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो अबाउट द एडवर्ब। शी स्पोक जेंटली, हाउ शी स्पोक, कैसे उसने बोला, जेंटली बोला, एंड जेंटली इज द वर्ड ऑफ एडवर्ब। हर वॉइस इज वेरी स्वीट, हाउज हर वॉइस, किस प्रकार का उसका आवाज है, हाउज हर वॉइस, कैसा है उसका आवाज, स्वीट है, दैट इज एडवर्ब। द लायन रोर एंग्रीली, हाउ द लायन रोर, लायन कैसे चिल्लाया, एंग्रीली, वो गुस्से से चिल्लाया, दिस इज एडवर्ब। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट इन अ सेंटेंस about the adverb. Move to the next topic, prepositions. So we have the prepositions. Definitions is a word which shows the relationship between nouns or a pronoun and some other words in a sentence. चाहे वो noun और in place of noun के बदले pronoun के साथ, ये क्या चीज बताता है, दो चीजों के बीच में, दो, देयर शुड बी अ मेंशनिंग इन अ सेंटेंस, द टू थिंग्स शुड बी देयर, और दोनों चीज के बीच में संबंध को बताने को हम लोग प्रीपोजिशंस बोलते हैं। दो चीज के उसमें हमेशा संबंध होता है, तो दो चीज जहां पर भी उसके बारे में टेलिंग समथिंग अबाउट, है ना, तो ऐसे संबंध को, दोनों चीजों के बीच में संबंध को जोड़ने का काम प्रीपोजिशन करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। इसीलिए यहाँ पे शोज द रिलेशन बिटवीन नाउन्स, यानी कि शोज, इसीलिए ये बताया गया, शोज द रिलेशन बिटवीन नाउन्स और प्रोनाउंस, नाउन और प्रोनाउन के बीच में होने वाले संबंधों के बारे में प्रीपोजिशन कहलाता है। तो हाउ डू वी नो दैट इन अ सेंटेंस, हम लोग कैसे जानते हैं कि ये सेंटेंस में प्रीपोजिशन कैसे होता है, कि सारा पुट हर बैग ऑन द टेबल, यू कैन सी हियर, बैग, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, और सॉरी एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, बैग और टेबल के विषय में, बैग और टेबल के विषय में। तो यहाँ पे क्या हो गया, इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन। अब यहाँ पे दो चीज के बीच, सारा पुट हर बैग ऑन द टेबल, वेयर शी हैज पुट द बैग, टेबल पर उसने बैग को रखा, और बैग और टेबल के बीच में संबंध क्या है, ऑन का है। तो ऑन इज ए सच वर्ड्स दैट टेलिंग अबाउट द रिलेशंस बिटवीन बैग एंड टेबल, टेबल और बैग एंड टेबल के बीच में संबंध को बता। तो बैग कहां पे रखा है, टेबल पर, और टेबल के, बैग का सरफेस और टेबल का सरफेस, तो बैग का सरफेस किसके ऊपर रखा गया, टेबल के सरफेस के ऊपर, दैट्स व्हाई
कोई भी किसी भी सरफेस के ऊपर रखा जाता है तो ऑन हमेशा यूज होता है. सो दैट्स व्हाई ऑन इज अ प्रीपोजिशन. ऑन इज अ प्रीपोजिशन and the relation between bag and table is preposition on. and on that means relation क्या है कि बैग टेबल के ऊपर रखा गया है. now move to the next example. the ball under the table. अब बॉल, अब ये जो सब्जेक्ट है बॉल और टेबल, ये दो चीज, सॉरी ये बॉल और ये टेबल, ये दो है, ये दोनों के बीच में संबंध क्या है? प्रीपोजिशन. रिलेशन बिटवीन दिस, इन दिस बिटवीन, तो वो है अंडर. अंडर इज ए प्रीपोजिशन. और प्रीपोजिशन बॉल कहाँ पे? टेबल के नीचे. अब यहाँ पे टेबल के नीचे, टेबल के सरफेस को टच नहीं कर रहा है और टेबल के नीचे हो गया, काफी उन बॉल और टेबल के बीच में गैप है और टेबल के नीचे, दैट्स मीन्स अंडर. तो कोई भी चीज किसी के भी नीचे होता है तो हमेशा यूज अंडर. सो यू कैन, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई whether it is preposition or not, you have to ask the questions by using where. Where is the ball? The ball is under the table. So these are the example that you can identify by using how or where. Another topic, conjunction. Conjunction is used to join words or group of words or sentences. So here conjunction is used to join words. अलग अलग दो शब्दों को जोड़ना या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के ग्रुप को जोड़ना या सेंटेंस को जोड़ना, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट सेंटेंस को जोड़ना. सो कंजंक्शन सच वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स, इट्स सच वर्ड्स दैट यूज्ड टू जॉइन द sentences or to join the groups of words or words. So here we have some of the examples. She wrote all the answers neatly and correctly. She wrote all the answer neatly and correctly. Here two distinct words, neatly and correctly. She wrote all the answers neatly and correctly. Here we have neatly and correctly. These two distinct words, and these two words are joined by and word, and is the conjunction. And is a conjunction word. So like I said, words, कौन से दो words है? Neatly and correctly. और neatly and correctly are joined by and words, and is a conjunction. Now to the next example. He failed because he did not work hard. He failed subject and verb. It becomes a one sentence. And here is another sentence. He did not work hard. Along with there is what? Because. And because is a conjunction. So here because is joining two distinct sentences with because, and because is playing a role between these two sentences. It telling about the causes, causes as well as you can say that reason also. तो ये reason बता रहा है कि वो क्यों असफल हुआ, क्योंकि वो he did not work hard, क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया. That's why in that respect also the conjunction are used to join the sentences. So either don't get confused कि conjunction बोलने का मतलब सिर्फ and और because है. There is some other words also are used in the form of conjunctions, and that also played the same role among the words as well as group of words and sentences. Interjection is a word which expresses some sudden feelings. Some sudden feelings is जिसको कि हम लोग अचानक sudden feelings हम लोग
अचानक वो चीज़ों को देखकर हम लोग अपना भावना को प्रकट करते हैं। जो अचानक में भावना आता है और उसको प्रकट करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, द अर्थक्वेक हैज डिस्ट्रॉयड मेनी विलेजेस। तो कुछ सडन फीलिंग्स क्या हो गया, जैसे एकदम दुख प्रकट करना। ब्रेवो, कुछ अच्छा काम किया था, शाबाश। ब्रेवो का मीन्स वेल प्लेड, अच्छा खेला, शाबाश। सो दीज आर द सडन फीलिंग्स, सो it is called interjections. I hope that you understood whatever I taught recently, and you have a homework that page 11 B, C, page 12 C, D, F, G, H, page number 13, and H you have to do in your grammar copy, only H, and rest of the homework you have to do in your book. Till then, goodbye, see you in the next video.